Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. This is the second part of chapter 2 for standard 9 subject social science board NCERT syllabus, and chapter name is socialism in Europe and the Russian Revolution. So in first video we discuss about the age of the social change in Europe, the meaning of liberals and radicals and conservatives and their ideas, as well as we talk about industrial society and social change, what kind of industrialization was started and how did it was spread in Europe, and with that the coming of socialism to Europe. In that we discuss about Karl Marx and Friedrich Engels. They talked about the labor rights. Now in this video we are going to talk about how did the socialism found support in European countries. So before I start my video, I would like to tell you that if you like the video, please share the video, subscribe the channel and press the bell icon for the new notification of the video. So let's start today's video. Topic is support for socialism. So by the 1817, in last video if you remember, let me tell you, memorize that thing which is very important to understand this one. So this shows that how did the industrialization was spread in Europe. If you see in 1840, the region is only, this kind of region is only promote industrialization. Afterwards that increase in 1850 this, 1860 this, 1870 this, and 1880 almost all the Europe having industrialization during that time in 1880. So from 1840 to 1880, it means that in 40 years almost in all the region of Europe, industrialization was started and the impact was found on socialism. So by the 1870, a socialist idea spread through Europe. To coordinate their efforts, socialists formed an international body, namely the Second International. सो 1870 तक सोशलिस्ट आइडियाज़ जो थे, यानी इक्वल राइट्स और वोट और फीमेल राइट्स, ये सब आइडियाज़ पूरे यूरोप में स्प्रेड हुए. और अकॉर्डिंग टू दैट ये जो कॉन्सेप्ट था उसको और वाइजली रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लोगों ने वहाँ पे एक इंटरनेशनल बॉडी बना दी जिसका नाम रखा सेकंड इंटरनेशनल. Worker in England and Germany began forming associations to fight for better living and working condition. तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लंदन में क्या सिचुएशन थी लोगों की, कि रहने के लिए उनके पास घर नहीं था, सैनिटाइजेशन का प्रॉब्लम था, वेजेस कम थे. तो उनके जो राइट्स थे उनके रिगार्डिंग यहाँ के जो वर्कर्स थे उन्होंने, स्पेशली इंग्लैंड और जर्मनी के जो वर्कर थे, उन्होंने एसोसिएशंस बनाना चालू कर दिया. दे सेटअप फंड्स टू help members in times of distress and demanded a reduction of working hours and the right to vote. तो यहाँ पे उन्होंने क्या डिमांड रखी, एक तो जब एसोसिएशन बनाया उन्होंने अपना फंड कलेक्ट करना चालू किया जिससे जिसको भी कोई मेंबर को प्रॉब्लम हो उसको फाइनेंशियल हेल्प कर सके. इसके अलावा उन्होंने डिमांड की कि जो वर्किंग आवर्स है उसको कम किया जाए और उनको भी वोटिंग का राइट्स मिले, जो अब तक फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सबको मिला नहीं था. जब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो मोनार्की डिक्लाइन हो गई फ्रांस में और डेमोक्रेसी रिपब्लिक फ्रांस भी बन गया, पर जो वोटिंग राइट्स थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे, जिसकी इफेक्ट अब यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में होने लगी थी. इन जर्मनी दिस एसोसिएशंस वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD एंड हेल्प इन विन पार्लियामेंट्री सीट्स. तो दिस इज़ द मेंबर्स ऑफ SPD. ये अगर आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर, ये जो उनकी सबसे पहली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसके सब मेंबर्स हैं. बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन formed a Labour Party in Britain and Socialist Party in France. However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe. तो यहाँ पे सोशल
पॉलिटिकल पार्टीज बन गई, बट यहाँ पे यूरोप में अभी तक सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी नहीं थी। ये जितने भी लोग हैं वो उसके पीछे एफर्ट कर रहे थे। Represented by strong figures in parliamentary politics, their ideas did not shape legislation, but government continued to be run by conservatives, liberals and radicals. तो यहाँ पे इनके जो आइडिया थे वो एक्चुअली कोई लेजिस्लेशन का उनको शेप नहीं मिला था, यानी कोई लॉज बने या ऐसा कुछ हो, वैसा नहीं था। तब तक ये टाइम पे जो भी गवर्नमेंट थी वो कंजर्वेटिव्स जो आइडियाज़ थे या लिबरल्स जो आइडिया था या रेडिकल्स जो आइडिया थे उनके हिसाब से चल रहे थे। तो लिबरल्स जो थे वो जिनके पास प्रॉपर्टी है उनकी फेवर में थे, रेडिकल्स थे वो ये बोलते थे कि नहीं भाई सबको राइट्स मिलने चाहिए, और कंजर्वेटिव्स जो थे वो पुराने फॉर्म को ही फॉलो करने के लिए ज़्यादातर वो उसको ही इम्पोर्टेंस देते थे। तो इस तरह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूरोप में ओपन हो गया कि किस तरह की गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए तो इस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए कि जहाँ पे सबके फंडामेंटल राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स के बारे में सोचा जाए। अब यहाँ पे एक पिक्चर आप ये देख रहे हैं जो, तो ये क्या डिस्क्राइब करता है कि पेरिस कम्यून ऑफ 1871 की है, फ्रॉम इल्यूस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1871 में ये पब्लिश हुई थी ये पिक्चर। A scene from the popular uprising in Paris between March and May 1871. This was a period when the town council commune of Paris was taken over by a people's government consisting of workers, ordinary people, professionals, political activists and others. Commune was ultimately crushed by government troops, but it was celebrated by socialists the world over as a prelude to a socialist revolution. The Paris Commune is also popular, remembered for two important legacies. One for its association with the worker, Red Flag, that was the flag adopted by the communal revolutionaries in Paris, and second for the Marais original written as a war song in 1792, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे सब लोगों ने गाया था और वो उसका नेशनल एंथम बना। इट बिकम अ सिंबल ऑफ कम्यून एंड ऑफ द स्ट्रगल फॉर लिबर्टी। तो यहाँ पे जो वर्कर्स थे वो अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे थे, गवर्नमेंट ने उसको सप्रेस कर दिया, फिर भी ये एक एडवांटेज रहा और एक एग्जाम्पल बना कि लोगों को अब तक कोई भी कंप्लीट राइट्स नहीं मिला था। जो बॉटम ऑफ द सोसाइटी जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, जो कोई लास्ट कैटेगरी में थर्ड एस्टेट में जो आता है, जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे देखा था कि फ्रांस लुइस 16 ने फ्रांस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, उसमें जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उनके राइट्स के बारे में अब तक सोचा नहीं गया था। तो इस तरह से यूरोप में सोशलिज्म चालू हुआ। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है वर्ल्ड की आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन वो है रशियन रेवोल्यूशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रशियन रेवोल्यूशन। So this is the first picture of the Russian Revolution. If you see this picture properly, then this picture describes many things together. तो अगर आप ये पिक्चर को ध्यान से देख रहे हो कि रेवोल्यूशन के टाइम पे रशिया में क्या कंडीशन थी, तो ये यहाँ से हमें क्लियरली पता चल जाता है। ये वहाँ के जो लोग थे जो डिमांड्स कर रहे थे उनकी फ़ोटो है। जैसे हमारे यहाँ रिवोल्ट हुआ था, रेवोल्यूशन हुआ था, वैसा ही सिचुएशन वहाँ पे भी थी। अब ये वहाँ के जो ज़ार्स की जो आर्मी थी उसकी पिक्चर है, और ये है लेनिन, Vladimir Lenin, a promoter of the most important person of the Russian Revolution, और इनके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। तो ये जितने भी पिक्चर्स आप देख रहे हैं वो एक्चुअली में आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक भी नहीं है। तो ये आपको बेनिफिट है यहाँ पे ये वीडियोस देखने का कि जो अनसीन ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे आप क्लियरली उसको समझ सकते हो। तो रशियन रेवोल्यूशन इन वन ऑफ द लिस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड of European state, this situation was reversed.
socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917. तो 1917 रशियन रेवोल्यूशन के साथ में जो ईयर होता है वो 1917 लिखा जाता है, क्योंकि ये ईयर में ये रशियन रेवोल्यूशन हुई थी। अब यहाँ पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ गई थी। द फॉल ऑफ मोनार्की इन February 1917 एंड द इवेंट ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। तो रशिया में किसका रूल था वो टाइम पे? तो जार्स जो थे उनकी डिक्टेटरशिप थी वहाँ पे। हाउ डिड दिस कम अबाउट? व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया व्हेन द रेवोल्यूशन अकर्ड? द आंसर दिस क्वेश्चन, लेट अस लुक रशिया अ फ्यू इयर्स बिफोर द रेवोल्यूशन। तो रशियन रेवोल्यूशन होने का रीज़न क्या है? तो उसके लिए रशिया की हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये रेवोल्यूशन कैसे हुई। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन का हमें पता है कि जब लुइस 16 मोनार्क बने फ्रांस के, तब वहाँ की ट्रेजरी पूरी एम्प्टी हो गई थी। अब उसके लिए उन्होंने टैक्स इंक्रीज़ किया, पर टैक्स जो था वो थर्ड एस्टेट के ऊपर ही था, और ये रीज़न हुआ रेवोल्यूशन का। अब यहाँ पे जो रीज़न था वो थोड़ा डिफरेंट था। एक्चुअली में बेस अगर आप देखने जाओ, इसका रिजल्ट अगर आप देखोगे तो सेम टू सेम है, पर जो तरीका है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन को एक दूसरे से अलग करता है, वो जो तरीका है रेवोल्यूशन का, वो ये दोनों रेवोल्यूशन को एक दूसरे से अलग करता है। अब वो क्या तरीका है, वो जैसे जैसे ये चैप्टर और वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द रशियन एम्पायर इन 1914। हम बात करेंगे 1914 से। तो ये है जार निकोलस टू। निकोलस टू है ये, और ये है निकोलस वन। तो ये निकोलस वन की फ़ोटो आपके उसमें नहीं है टेक्स्ट बुक में, इनके फादर जो है वो, और ग्रैंडफादर और फादर, और यहाँ पे निकोलस की फ़ोटो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है, जिनको बोला गया है निकोलस टू। तो इन 1914 जार निकोलस टू रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। Besides the territory around Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, part of Poland, Ukraine, Belarus, etc. तो ये रशियन एम्पायर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा रीजन रशियन एम्पायर के अंदर आता, जो आप क्लियर यहाँ पे देख ले, फिनलैंड से लेके मॉस्को, ये सब रीजन, ये सब जो था वो रशियन उसमें आता था, रूल में। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी ये फ़ोटो है मैप की, जिससे आपको पता चले कि रशिया कितना बड़ा था वो टाइम पे। अब इतना सारा कंट्रोल उनके पास था, तो ये बेसिकली क्या डिस्क्राइब करता है? उनका पावर डिस्क्राइब करता है। It stretched to the Pacific and comprised today's Central Asia states as well as Georgia, Armenia, and Azerbaijan. The majority region was Russian Orthodox Christianity, which had grown out of the Greek Orthodox Church, but the empire also included Catholic, Protestant, Muslim and Buddhist. तो जैसे ग्रीक ऑर्थोडॉक्सी थी वैसे ही यहाँ पे थी, सब लोग चर्च। ये देखिए यहाँ पे जर्मनी है, हंगेरिया है, ऑटम एम्पायर है, पर्सिया है, और ये जो पूरा है ये देखिए फिनलैंड, जर्मन एम्पायर यहाँ पे और फिनलैंड यहाँ पे। अब यहाँ पे रशिया का रूल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इटली, ये जितने भी रीजन है वो रशियन रूल में आते थे वो टाइम पे। अब यहाँ पे जो था वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी चलती थी, जैसे फ्रांस में चलती थी वैसे ही, कि भाई चर्च सबसे ऊपर रहेगा और उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेगी। पर यहाँ पे जो मोनार्क था उनके पास ज़्यादा पावर था, चर्च से भी ज़्यादा पावर था। और यहाँ पे जो रिलीजियंस फॉलो होते थे उसमें बुद्धिस्ट भी थे, मुस्लिम्स भी थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, कैथोलिक्स भी थे। अब रशिया की इकोनॉमी वो टाइम पे क्या थी? तो ये है रशिया की इकोनॉमी का एक स्ट्रक्चर, कि रेलवे लाइंस इंक्रीज़ हुई और बाकी क्या चेंजेस हुए वो यहाँ पे पूरा वॉर एंड रेवोल्यूशन जो डिस्क्राइब्ड है, छोटे छोटे जो पॉइंट्स है यहाँ पे 1914 से लेके 1917 तक और 1918 तक कितने चेंज आए वो सब यहाँ पे है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये
रशियन रेवोल्यूशन जो हुई उसके जो रीजंस थे वो यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है। आप ये नेट के ऊपर से भी आप देख सकते हो, ये यहाँ पे भी लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, डिक्टेटरशिप, ये सब कॉमन प्रॉब्लम थे। और इंडस्ट्री सोसाइटी एंड सोशल चेंज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, उसमें फिर वापस जो फार्मर्स और जो लेबर्स थे उनके साथ सप्रेशन हुआ, उनका हैरेस किया जाता था, और ये सब रीज़न की वजह से रशिया में रेवोल्यूशन हुआ। At the beginning of the 20th century, the vast majority of Russia's people were agriculturists. यानी 20th century के टाइम पे रशिया के जितने भी लोग थे उनमें से ज़्यादातर लोग कल्चरलिस्ट थे, यानी कि फार्मर थे। About 80% of the Russian Empire's population earned their living from agriculture. 85% लोग जो थे पूरे रशिया के, वो अपने अपने जो अर्निंग थे वो एग्रीकल्चर से करते थे। दिस प्रोपोर्शन वाज हाईएस्ट देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। तो ये जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो 85% लोग रशिया के काम करते थे वो यूरोपियन कंट्रीज में सबसे मैक्सिमम नंबर था। फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वाज बिटवीन 40% एंड 50%, और फ्रांस और जर्मनी में ये रेशियो 40-50% का था। इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स produce the market as well as for their own needs, and Russia was a major exporter of grain. तो वो टाइम पे रशिया मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन का, क्योंकि 85% जब आपकी पॉपुलेशन एक फील्ड में वर्क करती है तो डेफिनेटली वहाँ आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा ही होगा। इंडस्ट्रीज वॉज फाउंड इन पॉकेट्स, तो इंडस्ट्रीज जो थी वो इतनी डेवलप नहीं हुई थी। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वेर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, तो मॉस्को और पीटर्सबर्ग थे, वहाँ पे इंडस्ट्रीज थी। क्राफ्टमैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड alongside craft workshop. Many factories were set up in the 1890s when Russia's railway network was extended and foreign investment in industry increased. तो ये रशिया का रेलवे मैप है, वो कैसे इंक्रीज़ हुआ और इसकी वजह से उनको मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिला, क्योंकि अब यहाँ पे फैक्ट्रीज होगी चालू इन रेलवेज कोचेस बनाने के लिए, या तो और जो भी मटेरियल चाहिए वो बनाने के लिए, उनके लिए यहाँ पे अलग अलग फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज चालू हुई, और इससे उनको एक बूस्ट मिला और एक एडवांटेज भी मिला, जो लोगों को पता चला कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है। तो 1890 में ये रशिया का जो रेलवे था वो इंक्रीज हुआ। कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रुपल्ड। यहाँ पे अब रेलवे जब चालू हुई इतना, तो वहाँ पे आयरन और स्टील की डिमांड बढ़ी, और वो तो 4-5 टाइम्स बढ़ी, और कोल जो था उसका प्रोडक्शन डबल हो गया। द 90s इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वेर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। तो 90s तक ऐसा था कि जहाँ पे फैक्ट्री होती थी वहाँ पे वर्कर और क्राफ्टमैन वो ऑलमोस्ट इक्वल थे। मोस्ट इंडस्ट्रीज वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। पर यहाँ पे जो फ्रांस में था वैसा ही यहाँ पे, और बाकी जो यूरोपियन नेशन में था वही है कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो थी उसकी ऑनरशिप प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के पास होती थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू एंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर ऑफ वर्क, बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। तो गवर्नमेंट ध्यान रखती थी कि भाई मिनिमम वेजेस और लिमिटेड आवर्स हो, पर जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर थे वो जो रूल्स थे उसको फॉलो नहीं करते थे। इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स द वर्किंग डे वॉज समटाइम्स 15 आवर्स। तो स्मॉल वर्कशॉप और क्राफ्ट यूनिट में मिनिमम 15 आवर्स आपको काम करना है, कंपेयर्ड विद 10 और 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज में वो 10 और 12 आवर्स का होता था। एकोमोडेशन कैरिड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेटरीज, और यहाँ पे फैक्ट्री वर्कर को एकोमोडेशन भी मिलता था। वर्कर्स वेर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप, तो ये क्राफ्टमैन भी वर्कर थे और फैक्ट्री वर्कर भी वर्कर थे, पर ये जो वर्कर्स थे वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गए। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे केम, अदर हैड सेटल इन सिटीज परमानेंटली। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल। अ मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग recalled metal workers considered themselves aristocrats among other workers.
यानी यहाँ सुपैरिटी बन गई कि अगर आपके पास ज़्यादा स्किल है तो आप दूसरों से अलग हो। देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल, क्योंकि मेटल वर्कर आपको बनना है तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और स्किल होनी चाहिए, तब जाके आपको वो काम मिलेगा। Their occupations demanded more training and skill. Women made up 31% of the factory labor force by 1914, but they were paid less than men. तो यहाँ पे जो फ्रांस में हुआ था वैसा ही हुआ कि यहाँ पे जो विमेन थे उनको राइट्स नहीं मिलता था, जबकि टोटल लेबर में 31% जो थी वो विमेन थी। बिटवीन हाफ एंड थ्री क्वार्टर ऑफ अ मेन वेजेस, तो उनको कितना मिलता था कि जो मेन वर्कर थे उनको जो वेजेस मिलता था उससे हाफ या तो थर्ड क्वार्टर उनको मिलता था। डिवीजन अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। अब जिस तरह से इनकम होगी वैसे ही आप ड्रेसेस पहनोगे, और ड्रेसेस की वजह से एक डिस्क्रिमिनेशन होता है जो यहाँ पे भी हुआ। सम वर्कर फॉर्म्ड एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर इन टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशंस वेर फ्यू। कुछ एसोसिएशन बने कि जहाँ पे अगर कोई वर्कर अनएम्प्लॉय है तो उसको थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प मिले, पर ऐसे जो एसोसिएशन थे वो बहुत कम थे। डिस्पाइट डिवीजन, वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क when they disagreed with employers about dismissal or work conditions। तो ये वर्कर के बीच में डिवीज़न था उनके स्किल के हिसाब से, पर जब भी डिस्प्यूट होता था तब ये वर्कर्स एक हो जाते थे। दिस स्ट्राइक टुक प्लेस फ्रिक्वेंटली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग 1896 टू 1897। तो ऐसी स्ट्राइक जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काफ़ी देखने को मिली। एंड इन द मेटल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग 1902। अब मेटल इंडस्ट्रीज जो थी वो राइज अप इंडस्ट्रीज थी, क्योंकि वहाँ पे रेलवे लाइन इंक्रीज हो रही थी जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा था, और वो सेक्टर में जब स्ट्राइक होने लगी तो दैट इज़ अ की फैक्टर ऑफ द रेवोल्यूशन। In the countryside, peasants cultivated most of the land, but the nobility, the crown, and the Orthodox Church owned large properties. तो काम जो करता था एग्रीकल्चर फील्ड में वो वहाँ के जो लोकल लोग थे वो करते थे, पर मोनोपोली किसकी होती थी? तो द क्राउन की, यानी मोनार्क की, जो जार्स थे। फिर ऑर्थोडॉक्स जो चर्च थे उन लोगों की होती थी, और ज़्यादातर प्रॉफिट उनके पास चला जाता था। लाइक वर्कर पिशन टू वेर डिवाइडेड। अब इस तरह से जैसे वर्कर स्किल के हिसाब से डिवाइड हुए वैसे ये पिशंस भी डिवाइड होने लगे। दे वेर ऑल्सो डीपली रिलीजियस। अब ये जो फार्मर्स थे वो रिलीजियस थे, वो बहुत ही बिलीव करते थे ये सब रिलीजियस एक्टिविटी में, बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। पर उनको नोबिलिटी के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं था। Nobles got their power and position through their services to the Tsar, not through local popularity। पर नोबल जो थे वो बटरिंग करते थे जो जार थे, ये निकोलस जार जो आपने पिक्चर देखा जो मोनार्क था रशिया का, उसकी चापलूसी करते थे और उसके थ्रू नोबल्स को ज़्यादा बेनिफिट रहता था। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटेनी पीसेंट रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम। तो फ्रांस में क्या था कि नोबल के फेवर में लोग थे, पर यहाँ रशिया में उससे पूरा ऑपोजिट था। इन रशिया पीसेंट वांटेड टू लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। अब यहाँ पे पीसेंट यही चाहते थे कि जिस लैंड के ऊपर हम वर्क करते हैं उसकी अथॉरिटी हमें मिलनी चाहिए, ना ही कि नोबल्स को। फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर लैंडलॉर्ड्स। अब यहाँ पे ये एग्रेसिव हो गए, अब उन्होंने रेंट देना छोड़ दिया और जो लैंडलॉर्ड्स है उनका मर्डर होना चालू हुआ। इन 1902 दिस अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया। साउथ रशिया में ये बहुत ही बड़े मार्जिन के ऊपर हुआ। एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया। तो विद इन 3 years ये कॉन्सेप्ट जो था लूट फाट करो मर्डर करो ये पूरे रशिया में स्प्रेड हो गया। रशियन पीसेंट वेर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीसेंट इन अनदर वे। तो रशियन जो पीसेंट थे वो एग्रेसिव थे, वो फ्रांस के पीसेंट जैसे नहीं थे। दे pulled their land together periodically and their commune divided in according to the needs of individual families। अब ये चेंज करते रहते पेरियोडिकली, जिसकी नीड्स ज़्यादा हो जो फैमिली की उसको ज़्यादा लैंड कल्टीवेट करने को मिलती थी, और इस तरह से उनका अंदर अंदर कॉम्प्रोमाइज़ था। तो इस तरह से ये जो सीड्स थे
जो एंगर और डिससेटिस्फेक्शन के सीड्स थे वो रशिया में स्प्रेड होना चालू हुआ। अब आगे वाला जो टॉपिक है वो सोशलिज्म इन रशिया, रशिया में कैसे सोशलिज्म चालू हुआ। तो ये है उसके कॉन्सेप्ट। राइज ऑफ रशियन सोशलिज्म, 1898 सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फॉर्म, व्लादिमीर लेनिन लीडर। थ्री बेसिक अल्टरेशन टू मार्किज्म, जो मार्क थे उनके जो कॉन्सेप्ट थे, कार्ल मार्क्स, उनके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फॉलो किया गया कि भाई कैपिटलिज्म could only be destroyed by violent revolution. Socialist revolution were responsible even relatively backward nations like Russia. High discipline worker party controlled by intellectuals and full-time revolutionaries. 1903 social democratic split into two group, Menshevik यानी minority and Bolshevik यानी majority. 1905 Lenin and Trotsky plan next revolt. तो ये स्टार्टिंग हो गया था रशिया में सोशलिज्म का इस तरह से। ये सब कॉन्सेप्ट जो है वो यही है, ये है व्लादिमीर लेनिन, और ये उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी बनी वो ये सोशलिस्ट पार्टी का सिंबल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये जो है ये सब डिटेल्स आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये मेंशेविक और बोल्शेविक का जो डिफरेंस है उसके बारे में है। तो ये कॉन्सेप्ट सोशलिज्म के लिए रशिया में था। तो सोशलिज्म इन रशिया, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914, क्योंकि वहाँ पे जार का रूल चलता था। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898 बाई सोशलिस्ट हु रिप्रेजेंटेड मार्क्स आइडियाज़। कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते थे उनके थ्रू सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898 में फॉर्म हुई, जिसका सिंबल यहाँ पे था, ये जो सिंबल है वो था सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। अब ये जो पार्टी थी वो कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज़ थे उनको फॉलो कर रही थी। हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, पर गवर्नमेंट ने इसको इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। इट सेटअप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स। अब इन्होंने जो प्लान किया था उसमें इन्होंने न्यूज़पेपर चालू किए, खुद के वर्कर सप्लाई करना चालू किया और स्ट्राइक प्लान करते थे। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीसन कस्टम्स ऑफ डिवाइडिंग लैंड पेरियोडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। तो कुछ जो सोशलिस्ट थे वो ऐसा सोचते थे कि जो ये पीरियोडिकली यानी 1 बाय 1 जो लैंड यूज़ होते थे और इस तरह से एक दूसरे को हेल्प करते थे, वो एक्चुअली में नेचुरल सोशलिस्ट जैसा ही काम था। सो पीसन नॉट वर्कर वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज। तो अब यहाँ पे फार्मर जो थे वही ये सोशलिस्ट वर्क करते थे और 85% तो फार्मर थे रशिया में। तो रशिया में ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो है वो बल्कि फ्रांस में जितनी स्प्रेड हुई, जितना टाइम लगा उससे बहुत ही कम टाइम में ये स्प्रेड हुई। सोशलिस्ट वेर एक्टिव in the countryside through the late 19th century. They formed the Socialist Revolutionary Party in 1900. The party struggled for peasant rights and demanded the land belonging to nobles be transferred to peasant. अब ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, उनका कॉन्सेप्ट था कि भाई जो भी नोबल्स के पास लैंड है, जो एक्चुअली फार्मर जो वहाँ पे काम करते हैं उनको दी जाए और पीसेंट्स के राइट्स के बारे में सोचा जाए। सोशल डेमोक्रेटिक डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज अबाउट पीसेंट, पर ये जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी ये सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टीज के जो डिमांड थी उसके अगेंस्ट थे। लेनिन फेल्ट दैट पीसेंट वे नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, और लेनिन ऐसे सोचते थे कि जो पेशेंट है वो कोई एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। सम वेर पुअर एंड अदर रिच, सम वर्कड एज लेबरर वाइल अदर वेर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर्स। कुछ पैसे वाले थे फार्मर, कुछ गरीब थे, कुछ दूसरों को अपने काम पे रखते थे और कुछ दूसरे के फार्म में काम करने जाते थे। गिवन दिस डिफरेंशिएशन विद इन देम दे कुड नॉट ऑल बी पार्ट ऑफ अ सोशलिस्ट मूवमेंट। तो अगर इस तरह की सिचुएशन थी तो एक साथ में तो सब फार्मर ये मूवमेंट में इंक्लूड नहीं होंगे। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ
organization. Vladimir Lenin, who led the Bolshevik group, thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its member. तो लेनिन जो थे वो बोल्शेविक ग्रुप के लीडर थे, यानी बोल्शेविक ग्रुप यानी जो मेजोरिटी था, यानी जो गरीब फार्मर्स थे उनके ग्रुप के लीडर थे। और उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर हमें फाइट करनी है तो ये ज़ारिस्ट रशिया जो है उसके सामने एक हमें डिसिप्लिन फॉर्म बनाना पड़ेगा। अदर जो थे यानी जो पैसे वाले फार्मर थे उनके जो ग्रुप बना वो मेंसेविक यानी माइनॉरिटी ग्रुप बना। थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल एज इन जर्मनी। उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई पार्टी बनी है तो सबको इंक्लूड करो, उसमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है, पर बेसिकली जो पैसे वाले लोग थे वही इसके अंदर इंक्लूड होते थे। तो इस तरह से रशिया में सोशलिज्म स्प्रेड हुआ। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट ट्यूबुलेंट टाइम, यानी कि ऑटोक्रेसी वाला टाइम, जहाँ पे रशिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, बहुत सारे कंडीशन अनकंट्रोल हो गई इन 1905 में। बट वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा उसका रिव्यू आपको देना है। इसके रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, और कोई भी क्वेरी है या तो सजेशन है तो भी आप मुझे दे सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम रशियन रेवोल्यूशन कैसे स्प्रेड हुई और कैसे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, और रशियन रेवोल्यूशन रशिया ने अपना जो पार्टिसिपेंट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो विड्रॉ किया, किस तरह से लोग वहाँ पे मरे, किस तरह से ज़ार का सप्रेशन था, ये सब डिस्कशन अब हम पार्ट 3 में इसके करेंगे। अब यहाँ तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द लेंथी चैप्टर। ये चैप्टर के 4 पार्ट बनने वाले हैं, तो और अभी इसके बाद 2 वीडियोस और बनेंगे जो मैं जब भी अपलोड करूँगा, अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया है तो आपको सबसे पहले वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आपको उसको शेयर भी करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज़्यादा बच्चे इसको देखेंगे और कुछ सीखेंगे सो दैट इज़ माय बेनिफिट, वही मुझे चाहिए कि मैक्सिमम लोग इसका एडवांटेज ले। एंड आई नीड योर सपोर्ट ऑल्सो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।